This call is now being recorded. Okay, fine. So let's start with the session, sir. Before I start, I want to show you something very interesting. Just have a look at it. यहाँ पर मैंने एक axis draw किया है. Okay. And on this axis, this is obviously the origin 0. This is the time, and this is the amplitude. Okay. Let's start and let's listen to it. ये मेरा शहर, ये मेरी डगर, सर पे ये आकाश मेरा है घर। हाँ मैं ही गलत, हाँ मैं ही सही, मैं ही फैसला हूँ, मैं ही खाता वही। ऐसा है कौन यहाँ मुझसे जो जीत सके है कोई, जो तो वो मैं हूँ। मुझसे बड़ा कोई है इस जहां में, अगर वो कोई भी कल का मैं हूँ। मुझों पे धार रहे, हाथ में कुल्हाड़ रहे, युद्ध की पुकार रहे, करता ना समझौता। ए बिड्डा ये मेरा अड्डा। Okay, guys, what have you observed? Can you help me out with this? क्या समझा, क्या सीखा आपने? Hello, is my voice audible? Varying amplitude Very with good. respect to time. Fantastic. Amplitude is varying with reference to time. So as I have inferred in this case, x-axis corresponds to time. So as the time advances, so depending upon the time, my amplitude is varying. So I can say amplitude is purely a function of only time as a variable. So I can say this is a one-dimensional signal. फिर से सुनिए सर, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं. जस्ट हैव अ लुक एट इट, कुछ देखने मिलेगा आपको. Are you observing something, sir? Any idea on this case? Just have a look at it. Bit number 1, bit number 2, bit number 3. Are you noticing the waveform, how it is changing? Yes, yes, yes. Can you help me out with this case, sir? When there is no sound, the amplitude is zero. Exactly. So when there is no sound at that time, amplitude means the waveform, the signal is as good as parallel to x-axis. It is parallel to time axis. And as the bit starts playing, you can see the variations. So I can say certain things over here. Okay, this is a one-dimensional signal, no doubt about it. Okay. And this signal is a single channel, one-dimensional signal. And second thing, what I can say, okay, this green color is giving you a representation. Representation of what? This is giving you a representation of an original sound signal. Okay. So when you are hearing the sound, you get a audio, you get a hearing sense, and when you look at the waveform, you get a visual representation. So what I'm trying to say, okay, when you see the visualizations in the form of a graph, in the form of a waveform, you get a visual aspect, you get a visual representation of the song that you're hearing by means of ears. So I hope the signal is what is how you have understood it. Okay. Now let's start with our today's session, sir. एक मुझे आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दिखाना था कि किस तरीके से सॉन्ग प्ले किया जाता है, कैसे होता है. ये आपके साथ में ऑलरेडी मैंने शेयर किया है. सो आई होप यू माइट हैव गॉन थ्रू द पीडीएफ. अ पीसफुल इंफॉर्मेशन that can be conveyed mathematically. Okay, जैसे v is equal to sin omega t is a mathematical representation. Graphical, जैसे यहाँ पे अपने ग्राफ आपको मैंने ड्रॉ करके दिखाया था आपको मैंने. Okay, a probabilistic, what is the probabilistic? Like 1/2 is a half is the probability of getting a head on the coin flipped. Okay,
That is a set of means. The word a signal can be a piece of information, a message, or a data. Now, how do you classify a signal? The signal can be classified as a deterministic signal. What is the meaning of deterministic signal? एक एग्जांपल अगर आपको मैं कहता हूं कि मैं एक साइन वेव ड्रॉ करने वाला हूं, तो अगर मैं यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं कि दिस इज माय साइन वेव, व्हाट विल बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट? क्या आने वाला इसके बाद में? यस, नेगेटिव होगा। एग्जैक्टली। मतलब यहाँ पे मैंने टोपी बना दिया, अगर मैंने टोपी अगर मैं बना देता तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर नेक्स्ट वाटी आने वाला है, टोपी के बाद में वाटी आने वाला है। मतलब आप पहले ही डिटरमाइन कर देते हो कि अभी इसके बाद में क्या आने वाला है। तो आई कैन से कि दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ डिटरमिनिस्टिक सिग्नल। डिटरमिनिस्टिक सिग्नल का मतलब वो होता है कि वो सिग्नल जिसका वैल्यू आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है नेक्स्ट, व्हाट विल द नेक्स्ट वैल्यू। तो मैथमेटिकल सब दिखा सकते हो या ग्राफिकल से दिखा सकते हो, फाइन। What about random signal, sir? What about random signal? Can I predict whether tomorrow will be rain or not? Can we say COVID will end by 2022? These all are random signals. मतलब I cannot predict what is going to happen next. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे जब आपने सॉन्ग जब सुना तो आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि इसके बाद में कौन सा बीट प्ले होगा, क्या होगा करके। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम सिग्नल। रैंडम सिग्नल कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली बाय मींस ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक सेट ऑफ मींस, लाइक देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट इट मे रेन टुमारो, यू मे कैरी अम्ब्रेला इफ यू वांट टू कैरी। अभी बारिश होगी नहीं होगी वो आपके ऊपर है सर, वो उसमें कोई हम लोग उस पर कोई निर्भर नहीं करता है। इट इज कंप्लीटली वी से देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर कैन बी अ प्रोबेबिलिटी इट मे रेन टुमारो। ओके, द रैंडम सिग्नल का मतलब ये होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल इंपॉर्टेंट क्या, ओनली डिटरमिनिस्टिक सिग्नल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटरमिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल्स। ओके, लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड सर। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ चैनल, तो वन चैनल जैसे भी आपने देखा यहाँ पे कि ओनली बाय देयर इज ओनली वन चैनल वाज अ नैनो स्पीकर फॉर एग्जांपल। अगर एक ही स्पीकर आपके फोन में अगर एक ही स्पीकर है, दैट इज वी कॉल इट एज वन चैनल स्पीकर। अगर वहां पे दो स्पीकर अगर आपको दिया हुआ है, यू कैन से कॉल इट एज अ स्टीरियो स्पीकर। एग्जांपल आपको दिखा देता हूं सर यहाँ पर मैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं चले जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद मैं गो ओवर हियर लाइक स्पीकर सेटअप, फाइन। तो स्टीरियो अगर मैं करता हूँ तो आई कैन हियर साउंड थ्रू लेफ्ट एंड थ्रू राइट। ओके, fine, that what was the meaning of this. Next, talking about the depending upon the number of independent variable, तो जैसे मैंने आपको सॉन्ग अभी सुनाया, that song was purely a one dimensional because it was only dependent upon time, that's it. लेकिन अगर मैं फोटोग्राफ की अगर मैं बात करता हूं, जैसे यहाँ पे आपने देखा था, फॉर एग्जांपल टॉक अबाउट अ फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ वाज डिपेंडेंट अपॉन टू क्वांटिटी। व्हाट वाज टू क्वांटिटी सर, किस पे डिपेंड कर रहा था वो? इट वाज डिपेंडेंट अपॉन एक्स एंड वाई, फाइन। आई कैन से कि फॉर दिस value is like white color, black color, then you can see over here it is like yellow color. So how you came to know? By knowing the spatial coordinates. What spatial coordinates are? X, y, like 2, 3, 3, 4. ये कैसे पता चलेगा आपको? Because over here you require two quantity, X and Y. So what about a video? If you want to play a video, then what is video? Video is a two-dimensional? No, video is a three-dimensional. Why? Because वहां पे आपको ये भी दिखाना पड़ता है कितना टाइम आपको लगेगा, like 30 frame per second, 60 frame per second, 80 frame per second. You decide the tempo as well over there. You decide the speed as well. Okay, what speed you want? Okay, how much fast the video should, how much fast the photo should traverse along the belt. Okay, that what is the meaning of this? So I can say like video is a three dimensional because आपको time भी लगता है वहां पे. So I can say over here like example, just have a look at it. Okay, so I can say over here that the motion picture in this brightness level changes with reference to spatial coordinates, that is x, y, and also time is required. So what we call it as a multi-dimensional signal. Okay, ये थोड़ा theory इसमें थोड़ा मैं fast जा रहा हूँ यहाँ पर मैं, जब mathematical part शुरू होगा तो हम धीरे-धीरे हम लोग जाएंगे because it is very simple to understand. Okay, fine. Next we talk about continuous signal and discrete signal. तो what is the meaning of continuous signal and discrete signal? तो continuous signal का मतलब ये होता है कि वो सिग्नल जो continuity maintain करेगा. What is the meaning of continuity? Means the signal का value will be available at every instant of time. इसका मतलब क्या है सर? मतलब अगर मैं कहता हूं कि what is the signal value at this point? So value is available. What is signal value at this time? मैं कहूंगा this value is available. लेकिन समझो अगर मैं ऐसे कोई सिग्नल आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि 0 पे I have for example 1, at 1 पे I have 2, okay, at 2 पे I have for example I have the value as 3, okay, and so on. So now if I ask you, sir, what is the signal value at 0.5?
What is signal value available? Is there any value at 0.5, sir? Is there any value available at 1.12? Is there any signal value available at 1.95? No. Fine, your answer will be no. But if I ask you the same question over here, sir, what is the signal value at 0.59? तो आप बोलोगे ये सर 0.59 इधर कर दिया मैंने, and at 0.59 the value is somewhere about like 2 volt. Fine. So what is signal value at 2.53? तो आप बोलोगे सर 2.53 यहाँ कहाँ आने वाला है? And the value over here is around 1.52 volt. मतलब यहाँ पे आपका आंसर हमेशा यस होने वाला है. तो ऐसा सिग्नल जो आपको वैल्यूज हर मोमेंट पे प्रोवाइड करेगा, ऐसा सिग्नल जो वैल्यू आपको हर मोमेंट पर प्रोवाइड करेगा, हर इंस्टेंस आपको प्रोवाइड करेगा, ऐसे सिग्नल को मैं क्या कहने वाला हूं? कंटिन्यूअस सिग्नल. समझा सर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? बट इफ आई टेल यू कि नाउ दिस सिग्नल वैल्यू इज ओनली अवेलेबल एट स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ इंटरवल पर ही मौजूद होगा, ऐसे सिग्नल को हम क्या कहेंगे सर? डिस्क्रीट कहेंगे हम लोग. समझ रहे आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? आपको फिर से मैं एग्जांपल दिखाता हूं, यहाँ पे आपको फिर से मैं सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूं. फिर सर आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यूअस सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है. ये चलो अपन नया सॉन्ग प्ले करके देखते हैं हम लोग. लेट्स प्ले सम न्यू सॉन्ग टू अस. ओके, तो मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूं आपको मैं. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल प्ले दिस. ओके, this is the continuous signal. Yes sir, this is a continuous signal. Now I go over here, I go to visualization. लड़की शहर में नहीं हो, सुंदर हो, क्यूट लग रही हो, वैसे सिंगल हूँ, दिल का भी अच्छा, क्या हस्बैंड ढूंढ रही हो, कुछ भी कराना हमसे कहना, यहाँ के डॉन है हम. नंबर लिख 989711, उसके आगे डम डी का डम डम डम, क्योंकि अंग्रेजी आती है कम. Are you able to see the discretization, sir? नंबर लिख 989711, उसके आगे डम डी का डम डम डम, Yes. क्योंकि अंग्रेजी आती है There is कम. no signal available in between this point, है ना? सिग्नल अवेलेबल दिख रहा है यहाँ पर. तो यहाँ पे एक सिग्नल दिख रहा है हमको, एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है और एक हमको यहाँ पर दिख रहा है. Fine. तू लड़की लगती बॉन्ग, फोन कर कहती हेलो कौन. तू लड़की लगती बॉन्ग, फोन कर कहती हेलो कौन. हेलो कौन? हेलो हम बोल रहे हैं. हेलो कौन? हेलो हम बोल रहे हैं. तू लड़की लगती बॉन्ग, फोन कर कहती हेलो कौन. मैंने बोला हम है यहाँ के डॉन, तेरे लिए 24 घंटे फोन मेरा ऑन. कुछ तो काम तुम्हें भी होगा, ऐसे नहीं आई बंठन. नंबर लिख 989711, उसके आगे डम डी का डम डम डम, क्योंकि अंग्रेजी आती है कम. तेरे प्यार पे शुरू, तेरे प्यार पे खत्म. नंबर लिख 989711, उसके आगे डम डी का डम. Okay, so I was talking about this. Okay, like if you see this kind of signal where it was discretization in nature, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि like यहाँ पे अवेलेबल है सिग्नल, सेकंड सिग्नल यहाँ पे अवेलेबल है, so you don't have a signal in between. So this kind of signal where the signal is not available at every instant of time, we call that signal as a discrete signal. Is it clear to you, sir? What is the meaning of continuous and discrete? आपको मैं रियल टाइम एग्जांपल दिखा रहा हूं ताकि आपको समझे कि एक्चुअल में सिग्नल क्या होता है और किस तरीके से इसको आप रिलेट कर सकते हो. ओके, अभी एक स्पेशल केस यहाँ पे देख लीजिए सर, यहाँ पर आप थोड़ा समझ जाएगा आपको, फिर हम लोग थियोरी न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं. ओके, यहाँ पे अगर आप देखते हो, जस्ट आई विल लुक एट दिस सिग्नल. एक स्पेसिफिक सिग्नल यहाँ पे स्पेशल बना के रखा है कि द सिग्नल वैल्यू ओवर हियर इज 5. आर यू एबल टू सी दिस 5 सर? एंड exactly at zero the signal goes towards down with the value as 2. मतलब यहाँ पे वैल्यू 2 है और यहाँ पे वैल्यू 5 है. तो I can say for example at t, what t? At t less like 0 से कम, at t 0 minus, what is the value sir? At t 0 minus, what is the meaning of 0 minus? What is the meaning of 0 minus? The signal, yeah, the signal value just before reaching 0, मतलब 0 से पहले. What is the value sir? 5. What is signal value after 0, like 0 plus, at t 0 plus, what is the value? At t 0 plus, what is the value? The signal value is equal to 2. Okay, so now I can say okay, that what is the new value? The new value is 2. Fine. What is the original value, initial value? 5.
how much fast this value has been changed. The value is changed at a very fast pace, that is at equal to 0. So I can say this will tend to infinitive. So when you get a very abrupt change, that is very infinity change, अपने आप यहाँ abrupt change आपको आता है, तो ऐसे सिग्नल को हम क्या कहते हैं कि now we are getting a discontinuity. This is the point of discontinuity. This is the point of discontinuity. This is the point of discontinuity. समझा आपको discontinuity का मतलब क्या होता है यहाँ पर? Are you understanding, sir, what I'm trying to say? If you look at over here, like f of t plus h, मतलब अगर यहाँ पर मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूं, अगर मैं ये सिग्नल का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूं, तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज f of t plus h माइनस f of t डिवाइडेड बाय h, तो क्या आंसर आएगा मुझे? 2 minus 5 upon 0, that is equal to minus of infinitive. So whenever we get infinitive, at that point we say there is a discontinuity. Understood, sir? What is the meaning of this? Okay. Any questions so far, sir? We have completed with the basics of the signals, and now we are moving towards the numerical part, that is operations on signal, and then we'll be dealing with elementary signal. Any question over here? Yes, sir. Any question? We are done with what is in that formula. In that formula, what? What is h? H is the, like, that gap. Okay, like example, I will showcase it to you. See, f of t plus h, matlab t plus h. What is t plus h? 0 plus. Okay. What is f of t minus h, for example? It will be 0 minus. And h is that gap. H is that interval where the signal changes from 5 to 2. So h is that moment of time where the signal gives that discontinuity, and that change, that time is very, very less, equal to 0. And that is the reason we say it is 2 minus 5 divided by 0, h is 0, gives you answer as minus of infinitive. And when we get answer as infinitive, the first order derivative is infinitive. This means the signal is changing very abruptly, and that gives you discontinuity. Is it clear to you, beta? Yes, sir. Okay, fine. चलो आगे बढ़ते हम लोग. ये जो मैंने आपको बताया, ये वाला फॉर्मूला, ये आगे कहीं नहीं आने वाला है. ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन है, डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन जो आपने पढ़ा होगा 11th में, ओके, ये डेफिनेशन को यूज करके अगर मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्फिनिटी आता है, तो सिग्नल जो है वो पॉइंट पे आपको डिसकंटिन्यूटी देता है. फाइन. तो कहने का मतलब वहां पे वो था. ओके. नाउ ये क्यों पढ़ाया, उसका एग्जांपल देख लीजिए यहां पे आप. जैसे यहां पे कंटिन्यूस सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है. तो एक कंटिन्यूस सिग्नल का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं कोई भी पॉइंट पर, कैसे निकालते कोई पॉइंट पर डेरिवेटिव हम लोग? व्हाट विल द डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट, सर? So derivative at this point will be as good as slope, as you rightly mentioned, sir. So I'll get something of this kind. This will be the slope. What will be the derivative of this point on this slope? It is nothing but slope. Fine. मतलब ये मुझे क्या दिखा रहा है? मुझे it is just showing me कि how my signal is going to traverse. So when the slope exists, at that time we say it is finite. Means derivative will be finite. So when the first order derivative for every point on the curve is existing or finite, we say it is a continuous time signal. Okay, what is first order derivative? The formula is there in front of you. Okay, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखता हूं, क्या यहाँ पे मैं डेरिवेटिव निकाल सकता हूं बेटा? नहीं. क्यों? क्योंकि इसके बाद में ये क्या यहाँ पे मैंने दिखा दिया -1 पे वैल्यू इज 2 फॉर एग्जांपल, बट आफ्टर 2 क्या होगा? Can I find the derivative? What will be the derivative over? We say derivative will be infinitive. Why? Because there is a continuous abrupt change. Because 2 से directly वो 0 हो गया, 0 0 0 0 0, then you get some other value. Okay, so we say that the first order derivative is not possible because it is not existing only, it is infinitive. Okay, so for discrete it is infinitive. Is it clear to you, sir? क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर मैं? Yes, sir. Okay, Yes. श्रुति understood बेटा? श्रुति? हाँ सर, समझा. ओके, चलो, वेरी गुड. अब हम लोग आगे जाते हैं. इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी.
चलो अभी हम लोग मूव करने वाले हैं टुवर्ड्स कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। अच्छा अभी यहां पे स्टोरी समझिए आप। सेमिस्टर 4 है ना, आप सेमिस्टर 4 में हो, नेक्स्ट सेमेस्टर विल बी सेमेस्टर 5। सेमेस्टर 4 में यू हैव सिग्नल्स एंड सिस्टम wherein you will be learning only continuous signal. Okay, in semester 5 you'll be having something called as DSP. What is the DSP, sir? DSP stand for digital signal processing, wherein you'll be learning purely discrete signal. Okay, सेमेस्टर 4 में क्या सीख रहे हैं हम लोग? कंटिन्यूअस सिग्नल। सेमेस्टर 5 में हम लोग क्या सीखेंगे? डिस्क्रीट सिग्नल। सेमेस्टर 4 में आप जो सीखने वाले हो ना कंटिन्यूअस सिग्नल को यूज करके, मतलब क्या? ऑपरेशन ऑन सिग्नल, एलिमेंट्री सिग्नल, वो सेम टू सेम आपको यहां देखने को मिलेगा सेमेस्टर 5 में डिस्क्रीट सिग्नल बोलकर। ओके, नाउ अभी यहां पे अगर आप देखते हो तो मैंने यहाँ पे कोई भी रैंडम आर्बिट्री सिग्नल मैंने ड्रॉ किया, जैसे यहाँ पे अगर आपने देखा रहेगा, ये जो जब मैंने सॉन्ग जब प्ले किया, ओके आई एम टॉकिंग अबाउट, आई अगेन कम ओवर हियर, विल गो टू विजुअलाइजेशंस एंड आई विल चेंज टू कंटीन्यूअस वाला थिंग। कौन सा कंटीन्यूअस? स्कोप वाला वेवफॉर्म। ये देखिए, तो ये जो आपको दिख रहा है ये कंटीन्यूअस सिग्नल है। फाइन, नाउ दिस सिग्नल किसका सिग्नल है? ये बोलेगे सर ये सिग्नल जो है ये सॉन्ग का सिग्नल है। कौन सा सॉन्ग है? सर टोनी कक्कड़ का एक सॉन्ग है नंबर लिख वाला, ये वो सिग्नल का यहाँ पे प्ले हो रहा है। लेकिन अगर समझो कोई आदमी है जिसको ये सॉन्ग पता ही नहीं है, तो क्या बोलेगा? सर दिस सिग्नल इज ऑफ सम आर्बिट्री सिग्नल, दिस वेवफॉर्म इज फ्रॉम आर्बिट्री सिग्नल एंड लेट दैट आर्बिट्री सिग्नल बी डिनोटेड बाय लेटर एक्स। जैसे आप स्कूल में करते थे यार, लेट द एज ऑफ निखिल बी एक्स, लेट द एज एट विच सलमान खान विल मैरी विल बी एक्स। मतलब आपको पता ही नहीं, आप उसको एक्स बोलते हो। तो उसी तरीके से अगर आपको ये सिग्नल किसका है, कौन से गाने का है, किसका ईसीजी सिग्नल है कि सिस्मिक वेव है, कौन सा सिग्नल है, सर मुझे नहीं पता, आई विल से इट इज एक्स। नाउ दिस सिग्नल इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट सर? टाइप पे डिपेंड कर रहा है सर, ये टाइम पे डिपेंड करता है। तो आई विल से दिस सिग्नल इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम टी। जैसे एग्जांपल आपको याद होगा, आप ऐसा कुछ लिखा करते थे इन ओल्डन डेज, इन योर स्कूल डेज, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। मतलब क्या है सर? ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो एक्स पे डिपेंड करने वाला है। तो यहां पर सिमिलर जिस तरीके से आपने लिखा ना एफ ऑफ एक्स, वैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एक्स ऑफ टी। तो एक्स ऑफ टी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल वेयर दिस सिग्नल इज डिपेंडेंट प्योरली अपॉन टाइम टी। Why the name is purely on time t? Because I am dealing with one dimensional signal. हमारे पूरे सिलेबस में वन डायमेंशनल वन चैनल सिग्नल का बात हो रहा है। ओके, एंड दिस सिग्नल इज व्हाट? कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। इज इट क्लियर टू यू सर? क्या कहने की कोशिश करो यहाँ पर मैं? ओके, चलो अब हम पढ़ते क्या होने वाला है यहाँ पे। तो डिस्क्रीट सिग्नल के बारे में हमको पढ़ना ही नहीं है, ये हम लोग आगे के अगले सेमेस्टर में देखने वाले हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड सर। So first we will deal with operation on continuous time signal and then I will come to elementary continuous time signal. Okay? रीजन है उसका, बिकॉज एलिमेंट्री सिग्नल के जो पढ़ेंगे हम लोग वो टाइम पे मैं ऑपरेशन भी उसके करके दिखाने वाला आपको, तो आपको और आइडिया मिलेगा भाई क्या एग्जैक्टली होने वाला है, एंड सिमिलरली आपको ऑपरेशन और बिल्टअप होना शुरू होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग सर। तो ऑपरेशन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल क्या होता है सर? पहले समझने की कोशिश करिए आप कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल समझो यहां पर मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूं। रियल टाइम में बात करते हैं ना हम लोग, तो कैसे उससे इंटरेस्ट डेवलप होता है कि एग्जैक्टली क्या पब्लिक। ये देखा आप लोगों ने वीडियो, ठीक है? ये वीडियो आपको मालूम है, ये रणवीर सिंह का ये आवाज भी सुना रहे, मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम। अभी ये जो इसने जो बोला ना, इसका मैं काम करता हूं, ये सिग्नल है सर। इज इट अ सिग्नल और नॉट? यस, इट इज अ सिग्नल। अभी यहां पर मैं जाकर मैं प्लेबैक स्पीड नॉर्मल से इसको मैं क्या कर देता हूं? मैं 2 कर देता हूं। कैन यू टेल मी सर व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ? व्हाट विल हैपन? एम्पलीट्यूड बहुत जल्दी फ्रेम रेट डबल। क्या होगा यहां पर सर? अच्छा, पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? क्या हो गया सर यहां पर? अच्छा, पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे क्या हो रहा है यहां पर? क्या हो गया? जो एम्पलीट्यूड t पर आने वाला था वो t/2 पर आएगा। मतलब आप जो है वही है, सिग्नल में कोई चेंज नहीं हुआ है,
लेकिन क्या हो रहा है कि आपका सिग्नल जो है वो कंप्रेस हो गया है। कंप्रेस मतलब क्यों? मतलब जो श्रिंक हो गया, यस, मतलब जो 2 मिनट का वीडियो था वो 2 मिनट का वीडियो आप अभी 1 मिनट में देख सकते हो। यस सर, नो सर? जो 2 मिनट का वीडियो था उसको आप 1 मिनट में देखने वाले, बिकॉज आपका वीडियो पूरा जो है वो कॉम्प्रेस हो गया है, आपका टेम्पो जो था, वो स्पीड जो था वो फास्ट हो गया है। यस सर, ओके। नाउ अनदर एग्जांपल सर, अब मैं इसको करता हूं, यहां पे आने के बाद में आई कम ओवर, ये प्लेबैक स्पीड अब मैं कर देता हूं 0.5, मतलब पहले डबल किया था, अब मैंने आधा कर दिया। अब सुनिए क्या होने वाला है। मेरे को नहीं मालूम। क्या हुआ सर यहाँ पे? कैन यू हेल्प मी आउट? व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इन दिस केस? क्या हो गया सर यहाँ पे? सो वो कंप्रेस की जगह भी मतलब एक्सटेंड हो गया है। एग्जैक्टली मतलब जो 2 मिनट का जो वीडियो था, अभी उसको आपको 4 मिनट आपको देना पड़ेगा वीडियो देखने के लिए, बिकॉज नाउ द विड्थ ऑफ द सिग्नल हैज एनलार्ज, इट हैज एक्सपांडेड। ओके, तो सर ये क्यों करते हैं हम लोग सर? व्हाई डू यू डू ऑल दिस? लाइक व्हाई डू यू कॉम्प्रेस, व्हाई डू यू एक्सपांड? क्यों किया जाता है सर? इसका क्या रीजन है? क्या रीजन है सर? क्यों करते हो आप लोग ये? पहला चीज। सेकंड एग्जांपल आपको देता हूं। आपके पास में सेलफोन है, यू टेक द फोटोग्राफ यूजिंग द कैमरा एप्लीकेशन। फोटो कैप्चर करने के बाद फिर फोटो को आप जो है वो ब्यूटीफाई करते हो। हाउ डू यू ब्यूटीफाई? हाउ डू यू ब्यूटीफाई? यू इंक्रीज द सैचुरेशन, ओके, you change the depth of that, you increase the decrease the brightness, fine. How so? क्या करते हो सर? Why do you do all this? Have you ever used Instagram? Have you used Snapchat? Over there, have you used filters over there? क्या करते फिल्टर्स वगैरह? क्या करता है फिल्टर्स है, फिर आपको ब्यूटीफाई का मैंने ऑप्शन दिखाया, आपको यहाँ पे कुछ आपको मैंने एग्जांपल करके दिखाया, प्लेबैक स्पीड को मैंने कम कर। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू सर, क्या क्यों कर रहा हूं मैं? What was the main purpose, agenda? To make it sir more attractive. Fantastic. तो सर ये है एक्चुअल में ऑपरेशन ऑन सिग्नल। समझा आपको? मतलब मेरे पास में ओरिजिनल सिग्नल तो है, नो डाउट अबाउट इट, बट वो सिग्नल के ऊपर कुछ मैं सर्जरी करने वाला हूं, उसके ऊपर कुछ मैं ऑपरेशन करने वाला हूं, और वो सर्जरी, वो ऑपरेशन करने के बाद में जो नया जो सिग्नल जो इवॉल्व होगा, इट विल बी मोर इनहांस्ड, it will be more attractive, more beautiful compared to original signal. That is the meaning of operation on signal. Okay, तो भैया ऑपरेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, उसको हम लोग को समझना है आज। ठीक है, फाइन। तो भैया ऑपरेशन करने का वक्त आ गया है, सर्जन बनने का वक्त आ गया है। तो आई वांट एवरीवन टू वेयर एन एप्रन, ओके, बिकॉज अभी हम जाने वाले ऑपरेशन थिएटर में, और ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद में हम जो है वो ऑपरेशन सर्जरी करने वाले हैं। तो भाई वो लाल बत्ती चालू कर देने का ऑपरेशन के बाहर वाला, ओके, सो दैट द सिग्नल्स के जो घर वाले दुआ करते रहेंगे, प्रार्थना करेंगे भाई सिग्नल जो बच के बाहर आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट नाउ कमिंग टू ऑपरेशन सिग्नल। सर ऑपरेशन स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सिग्नल के बारे में थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। मतलब सिग्नल एग्जैक्टली क्या होता है? सर अभी तो पढ़ाई कर नहीं, थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाना है मुझे। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक सिग्नल है, ओके सर, ये हो गया एक्स एक्सिस, जहां पे मैं लेने वाला हूं टाइम। समझ रहे सर क्या बोल रहा हूं मैं? और ये है वाई एक्सिस सर, ये सर नो सर, जहां पे आप लेने वाले एम्पलीट्यूड। ओके, यहां मैं लेता हूं एक्स ऑफ टी, थोड़ा और टेक्निकल बात करेंगे हम लोग, टाइम इज टी एंड दिस इज एनी आर्बिट्री सिग्नल एक्स, ओके, एंड दिस एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। ओके, समझ गया सर क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे? और अभी मैं सिग्नल ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको मैं। तो सर यहां पर मैंने एक सिग्नल ड्रॉ किया है, ऐसा मैंने, फाइन, एक सिग्नल मैंने ड्रॉ किया है। अगर आप सिग्नल को ध्यान से देखते हो तो बोलोगे सर एक रेक्टेंगल के साथ पल्स आपने बनाई। बिल्कुल सही बोला सर, मैंने एक रेक्टेंगल पल्स मैंने बनाया है। ये जो वैल्यू है ये है -4, ठीक है बेटा, ये वैल्यू जो है ये है +2, समझ गया यहां तक? और ये जो वैल्यू जो है ये है 5। मतलब क्या बोलेंगे सर, अभी आप इसको अलग अलग बात करिए ना सर यहां पे। तो अब मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास में है एक्स एक्सिस, जी सर, और मेरे पास में वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस बोले तो टाइम, सही सर, और वाई एक्सिस मतलब क्या सर? वाई एक्सिस मतलब एक्स ऑफ टी। ओके,
So now you tell me, sir, on x-axis, what do you see? So on x-axis you see -4. On x-axis you see 2. So what is x-axis, sir? So I can say when I start reading the signal, वर्डिंग्स में ध्यान दीजिए सर, when I start reading the signal, मतलब when I start moving from left to right, I see first as -4. So I call this as starting point. Okay? मतलब यहां पे मेरा सिग्नल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? सिग्नल यहां पे खत्म हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? दिस आई कॉल दिस एज एन एंडिंग पॉइंट. तो आई से स्टार्टिंग पॉइंट इज -4 एंड एंडिंग पॉइंट इज 2. समझ गया सर क्या लिख रहा हूं वहां पर मैं? आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. फाइन सर. नाउ इफ आई आस्क यू, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ द सिग्नल? सर, what will be the width of the signal? The width of the signal is this. This is the width of the signal, okay, denoted by letter W. What is W, sir? What is the formula for W? W is nothing but EP minus of SP, which is equal to 2 minus of -4, and that comes out to be 6. He says a width is 6 in this case. Is it clear to you, sir? Okay. ये सब कहां से पता चला आपको सर? When you were watching x axis, तो x axis ने आपको बताया स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और विड्थ ऑफ द सिग्नल. अंडरस्टैंडिंग सर? ओके. नाउ इफ आई टॉक अबाउट y axis, तो y axis पे क्या आपको स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, क्या सर कुछ भी बात कर सर? कैसे पॉसिबल है सर? y axis को क्या मिलेगा आपको? y axis सिर्फ आपको हाइट बताने वाला है कि द हाइट ऑफ द सिग्नल इज 5 इन दिस केस. अंडरस्टूड सर? इज इट क्लियर टू यू? क्या बोला मैंने? तो मैं क्या बोल देता हूं सर, यहां पे सुनिए ध्यान से अभी आप. अगर कोई भी सिग्नल है, कोई भी सिग्नल अगर है, तो सिग्नल के अंदर 2 पैरामीटर होता है. मतलब क्या होता है? एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस. और जो एक्स एक्सिस आपको क्या बताने वाला है? एक्स एक्सिस आपको क्या बताएगा? स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और विड्थ ऑफ द सिग्नल. इज इट क्लियर टू यू सर? क्लियर हो गया यहां पे? अगर मैं वाई एक्सिस की बात करता हूं, तो वाई एक्सिस सिर्फ आपको हाइट की बात करने वाला है. तो ये मुझे समझ गए ये पॉइंट पर आके. सर लेकिन मेरा एजेंडा क्या था? मेरा एजेंडा आज का ये है कि मुझे ऑपरेशन समझना है कि भाई ऑपरेशन सर्जरी क्या होता है. तो ऑपरेशन वो क्या बोलता है कि आप करने वाले हो एक्स एक्सिस ऑपरेशन. मतलब कौन सा वाला सर? आप करोगे टाइम शिफ्टिंग, ठीक है, आप करोगे टाइम स्केलिंग, ठीक है, और आप करोगे टाइम रिवर्सल. फाइन. मतलब क्या? ये मैंने यहां पर भी लिख के रखा है, अगर आप देख सकते हो तो. I have written here कि operation signal is done on x-axis, which comprises of time shifting, time scaling and time reversal. मतलब shifting होगा, scaling होगा, reversal होगा. अभी shifting, scaling, reversal क्या बाद में समझेंगे हम लोग. अभी फिलहाल मेरे लिए वो हॉलीवुड का नाम है ना, कि shifting, scaling. I don't know what is exactly, but ऐसा समझ में आता है कि x-axis जो है वो shifting करेगा, scaling होगा, reversal होने वाला है. y-axis पे सिर्फ 2 होने वाला है. क्या 2 होगा? एक होगा मल्टीप्लीकेशन बाय कांस्टेंट के और दूसरा कौन सा होगा? क्लैंपिंग होगा. मल्टीप्लीकेशन बाय कांस्टेंट होगा और क्लैंपिंग होगा. ठीक है, समझा सर यहां तक आपको? अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं सर. यहां पे आपने लिखा एक्स एक्सिस में 1 2 3, ठीक है, और वाई एक्सिस में आपने क्या लिखा? मल्टीप्लीकेशन बाय कांस्टेंट, क्लैंपिंग. अब ध्यान सुनिए सर, मैं आपको सर्जरी कैसे करने का वो बताने वाला हूं, ऑपरेशन कैसे करना है. अभी सिंपल एग्जांपल आपको मैं देता हूं. एक डॉक्टर है जो कि सर्जन है, एमडी किया हुआ है. उसके पास में एक आदमी आता है कि डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन करिए. किसका ऑपरेशन करना है? सर पैर का ऑपरेशन करना है. ध्यान सुनिए सर, मजा आने वाला है. ओके, पैर का ऑपरेशन करना है. पैर का ऑपरेशन के लिए चला गया, ऑपरेशन हो गया. ऑपरेशन होने के बाद में पोस्ट ऑपरेशन की बात चल रही है. दर्द कहां होगा? पैर में होगा कि हाथ में होगा? बोलिए सर, कहां दर्द होगा? पैर में होगा कि हाथ में होगा? आफ्टर ऑपरेशन इज डन पैर में ही होगा ना सर. क्यों हाथ में क्यों नहीं होगा सर? हाथ में कुछ किया ही नहीं था सर. ऑब्वियसली. चेंजेस नहीं. फैंटास्टिक बेटा, फैंटास्टिक ना, बहुत सही आंसर दिया आपने. सेकेंड डे कोई दूसरा आदमी आता है, वो बोलता है मेरे हाथ में तकलीफ है, मेरे हाथ का ऑपरेशन करना है. हाथ का ऑपरेशन होने के बाद में दर्द कहां होगा? हाथ में होगा कि पैर में होगा? हाथ में होगा. फैंटास्टिक. बस बस हो गया मेरा काम, खत्म हो गया, खत्म हो गया सर. मतलब अगर मैं एक्स एक्सिस ऑपरेशन करता हूं तो क्या क्या चेंज होने का पॉसिबिलिटी है सर?
स्टार्टिंग पॉइंट चेंज होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और विड्थ। एग्जैक्टली सर। क्या हाइट चेंज होगा? नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली क्या बात, क्या बेटा आपने, वेरी गुड बेटा, आपने सर्जरी पास कर दिया आपने, वेरी गुड। आपने किया मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, आपने किया क्लैंपिंग, क्या मेरा स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट विड्थ चेंज होगा या नहीं चेंज होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्या बात है बेटा, ये बेसिक्स होता है, सिंपल है ना सर। इफ आई परफॉर्म एक्स एक्सिस ऑपरेशन only x parameter will change, y parameter will be unaffected. If I perform y axis operation, only y parameter will change, x parameter will not change. Okay सर, समझ गया सर, यहाँ पे क्या बात है। ओके वेरी गुड। एक और एक एग्जांपल दिया था रिपब्लिक डे करके, पाकिस्तान में बम धमाका हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट इन पाकिस्तान। इंडिया को फर्क पड़ता है क्या उससे? सर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हमें क्या, ठीक है यार, सो सैड, we condemn, but Pakistan is badly affected. Why? Because पाकिस्तान में ऑपरेशन हुआ है, पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, people over there has affected. Okay, that's what I'm trying to say. वो भी एग्जांपल लेके यहाँ पे समझ सकते हो। चलो भाई, अभी हम लोग आगे बढ़ते कि भाई क्या एग्जैक्टली पे क्या होने वाला है। तो मैंने कहा भाई आपको यहाँ पे कि मेरे पास में है टाइम शिफ्टिंग। अभी शिफ्टिंग क्या सुनिए सर ध्यान से, इंटरेस्टिंग है, धीरे धीरे जाएंगे हम लोग। डाउट अगर आता है तो वहीं स्टॉप करने का, पूछने का सर नहीं समझा करके, आई विल हेल्प यू आउट। टाइम शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग जो है वो दिखने का आपको ऐसा दिखेगा, मतलब अरे भाई मैंने बोला एक्स ऑफ टी, व्हाट इज एक्स ऑफ टी? सर ये तो ओरिजिनल सिग्नल होता है। व्हाट इज ओरिजिनल सिग्नल? आपके सामने है भाई, ओरिजिनल सिग्नल एक्स ऑफ टी है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है -2, ठीक है, एंडिंग पॉइंट है 4, विड्थ जो है वो 6 है और हाइट जो है वो 2 है। दिखा सर आप लोगों को? आर यू एबल टू सी? फाइन, स्टार्टिंग पॉइंट इज -2, एंडिंग पॉइंट इज 4, विड्थ इज 6, हाइट इज 2। ओके फाइन, ओके। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को याद रखने का, एक्स एक्सिस मतलब कौन सा, 1 2 3, वाई मतलब कौन सा, वाई मतलब ये वाला, ठीक है, कंफ्यूज करके मत बैठिए, याद रखिए कि इंडियन कौन है, पाकिस्तानी कौन है। पाकिस्तानी में बम धमाका होता है तो पाकिस्तानी अफेक्ट होगा, इंडियन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ सर। मैंने बोला एक्स ऑफ टी ओरिजिनल सिग्नल है, हम क्या करने वाले हैं सर, हम जो है वो शिफ्टिंग करने वाले हैं। तो शिफ्टिंग का सिंटैक्स कैसा है, शिफ्टिंग दिखता कैसा है? शिफ्टिंग जो है वो आपको ऐसा कुछ दिखने वाला है, मतलब एक्स ऑफ टी तो दिखेगा ओरिजिनल सिग्नल, लेकिन साथ में आपको मिलेगा प्लस बीटा करके, ऐसे एक दुमची लगने वाला, एक दुम बना देने का यहाँ पे कर, ठीक है, तो साथ में आपको आने वाला प्लस बीटा करके। अभी प्लस बीटा भी हो सकता है या माइनस बीटा भी हो सकता है सर, बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल सर। व्हाट इज बीटा सर? बीटा तो कोई भी वैल्यू है ना सर, बीटा कैन बी 2, बीटा कैन बी 3, बीटा कैन बी 5, बीटा कैन बी 4, बीटा कैन बी एनीथिंग सर, बीटा कैन बी 0 एज वेल। बीटा अगर 0 हो गया तो भाई एक्स ऑफ टी हो जाएगा ना सर, सिंपल है वो तो, ठीक है, तो बीटा कुछ भी हो सकता है। अभी आप मुझे बताइए सर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, कैन यू टेल मी सर, इट इज प्लस और माइनस ओवर हियर? इट इज प्लस और माइनस? माइनस है। माइनस, मतलब यहाँ पे जो मैंने कहा था ना माइनस भी हो सकता है, मतलब माइनस वाला केस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा ओवर हियर नाउ? 2। वेरी गुड सर, फैंटास्टिक, मतलब आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अभी सुनिए सर, आपको पहले मैं मुंबई यूनिवर्सिटी मेथड बताता हूं। क्या बोला मैंने सर? मुंबई यूनिवर्सिटी मेथड में बताता हूं क्या कैसे किया जाता है, आपको पूरा समझेगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सर मैंने बोला मेरा जो नया सिग्नल जो है ना, व्हाट इज नया सिग्नल? एक्स के बाद में क्या आता है, व्हाट कम्स आफ्टर एक्स? वाई। आफ्टर एक्स वाई ना, अरे एबीसीडी, रे नर्सरी, फाइन, आफ्टर एक्स वाई आने वाला है। तो व्हाट इज वाई ऑफ टी सर? वाई ऑफ टी इज एक्स ऑफ टी माइनस 2। सर टी माइनस 2, अरे मेरे भाई क्वेश्चन में लिखा है ना टी माइनस 2, वही तो लिखा है मैंने। तो एक्स ऑफ टी माइनस 2 करने के बाद में जो नया जो सिग्नल मिलेगा ऑपरेटेड सिग्नल, तो माय y ऑफ t इज द ऑपरेटेड सिग्नल, x ऑफ t इज द ओरिजिनल सिग्नल। समझा सर क्या बोल रहा हूं मैं? x ऑफ t ओरिजिनल सिग्नल है और y ऑफ t जो है ना ये मेरा ऑपरेटेड वाला सिग्नल है सर, समझा आपको? ठीक है, अब मैं लिखता हूं यहां पे x ऑफ t माइनस 2। अभी सर मुझे बताइए आप, अगर मैं कहता हूं y ऑफ 0 मतलब क्या? x ऑफ 0 माइनस 2, यस और नो? मतलब x of minus 2, what is x of minus 2 sir? What is x of minus 2?
क्या x ऑफ माइनस टू पे, तो आप बोलोगे x ऑफ माइनस टू इज 2, यस और नो सर, x ऑफ माइनस टू पे 2, तो आप बोलोगे सर x ऑफ माइनस टू इज 2, ओके फाइन। व्हाट अबाउट y ऑफ 1, तो आप बोलोगे सर y ऑफ 1 इज x ऑफ 1 माइनस 2 इज इक्वल टू x ऑफ माइनस 1। इज देयर एनीथिंग एट माइनस 1? Yes sir, it is there now. Minus 1 comes here somewhere over here. Minus 1 is what sir? Minus 1 is again 2. Okay. What about y of 4? What will be y of 4 sir? Fine. Y of 4 minus 2 matlab y of 2. What is y of 2 sir? So y of 2 matlab idhar kidhar? What is y of 2? I will say again sir it is 2 only. Okay. Now it will be sir what is y of 6? तो आप बोलेगे सर y of 6 is 6 minus 4. Okay. We can say 6. What is 6 minus 2? 6 minus 2, है ना? 6 minus 2. Y of 4 equal to what? So what is x of 4? What is x of 4? समझ रहे हैं आपको सर? X of 4 is what? 2. 2. है ना? अब मुझे बोलिए सर what is y of 7? मैं यहाँ पे लिखता हूँ because I don't have space down. So मैं लिखता हूँ y of 7. What is y of 7 sir? X of 7 minus 2. Fine. Okay. X of 7. 7 t is 7 now. Okay. What is 7 minus 2? 5. Y of x of 5. X of 5. Na? X of 7. X of 5. What is x of 5? Do you have any sample or any value over there? X of 5? No. I'll say the value is not there. So I say no value. NV. No value. अभी मुझे सर बताइए आप y7 मुझे मिल गया no value. So is there any point going further? Y of 8, y of 9. Point का मतलब है जाके आगे. Is there any meaning going ahead? No. So I'll say no, and now there is no point. सर कहां से स्टार्ट किया था मैंने? सर 0 से स्टार्ट किया था. 0 ने 2 दिया, 1 ने 2 दिया, 4 ने भी 2 दिया, 6 ने भी 2 दिया, 7 ने नो वैल्यू बोला, मतलब 6 इज माई लास्ट. 6 इज माई लास्ट. ओके 0 तक पहुंच गए थे हम लोग. नाउ आई टेक उल्टा, मतलब y ऑफ माइनस 1. ओके y ऑफ माइनस 1. ठीक है. 7 के आगे जाके मतलब ही नहीं है, तो 0 के पहले वाले थे माइनस 1. ओके कंफ्यूज मत होइए सर, सिंपल है, कुछ नहीं है. व्हाट इज द वैल्यू सर? व्हाट इज टी नाउ? क्या लिया मैंने? टी माइनस 1. यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस 1, है ना? माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ माइनस 3 सर? व्हाट इज एक्स ऑफ माइनस 3? व्हाट इज एक्स ऑफ माइनस 3? नो वैल्यू. नो वैल्यू. एनवी. वेरी गुड बेटा. एनवी मतलब माइनस 1 लेके भी मतलब नहीं, मतलब मेरे काम का सिर्फ अभी है तो y ऑफ 0 और y ऑफ 6, सिर्फ यही मेरे काम का है. बाकी कुछ काम करे, बाकी सब फालतू है ना? धरती का बोझ, फुकट है बाकी सब. तो अब मैं क्या बोलता हूं? 0 पर 2 तो 0 पे 2 प्लॉट कर दिया सर. यहां पर मैंने, दिख रहा है आपको? 6 पे 2 तो 6 पे 2, और मैंने यहां पे मेरा डायग्राम कंप्लीट कर दिया. ये देखिए आप, आई हैव कंप्लीटेड माय डायग्राम. So what have you understood from this sir? आपने क्या सीखा यहां पे? आपने ये देखा कि जब मैं t माइनस की जब मैं बात करता हूं तो पूरा सिग्नल जो है वो कहां चला जाता है? पूरा सिग्नल जो है वो राइट की तरफ चला जाता है. तो when I say as x of t minus beta, why beta is 2 ना, and minus is minus, तो minus makes my signal go towards right. ये समझ गया सर? ठीक है. मतलब मेरा पूरा सिग्नल जो है वो जहां -2 से स्टार्ट हो रहा था, जहां मेरा सिग्नल -2 से स्टार्ट हो रहा था, अब वो देर से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे स्टार्ट हो रहा है. मतलब मेरा पूरा सिग्नल जो है वो डिले हो गया है. मेरा पूरा सिग्नल जो है वो डिले हो गया है सर. समझ रहे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग सर? ये आपने पढ़ा होगा सर, आपको बताता हूं मैं. 12th में फिजिक्स 2 चैप्टर 16. कौन सा चैप्टर है सर? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. वहां पे आपने बोला कि अगर ये है वोल्टेज का एक्सेस, क्या बोला मैंने? ये है वोल्टेज का एक्सेस और ये है करंट का एक्सेस. तो व्हाट डू यू से सर इन दिस केस? आप क्या बोलते हो करंट के बारे में? आप क्या बोलते हो? लीडिंग वोल्टेज बाय एग्जैक्टली. Lagging.
एग्जैक्टली मतलब वोल्टेज आपका लीड कर रहा है और करंट जो है वो लैग कर रहा है। करंट लैग क्यों कर रहा है? बिकॉज करंट देर से स्टार्ट हो रहा है, करंट बाद में स्टार्ट होता है, मतलब वहां पे डिले आता है। इसलिए सर आपको याद होगा तो आपने लिखा था करंट के लिए I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस, सर माइनस लिखा था, बोला -90°। Yes or no? And this was the case for inductor, AC power to inductor. And that time you are told, sir, it is -90° because it is being delayed. It has been right shifted by 90°. And hence you have got such kind of waveform, sir. Correct, sir? Have you understood what I'm trying to say? Any question, any query over here? So I have understood you. Now I made you understand is what is the Mumbai University method, sir. अभी शॉर्टकट मेथड आ रहा है भाई। शॉर्टकट मेथड क्या बोलता है सर? शॉर्टकट मेथड आपको दिखाता हूं मैं सर। शॉर्टकट बोले तो डोंगरी का मेथड भाई। डोंगरी कहां से आ गया सर? कुछ भी। अरे आई स्टे एट डोंगरी सर। यू नो डोंगरी सर? हाउ मेनी ऑफ यू नो डोंगरी? हैव यू एवर बीन टू डोंगरी? डोंगरी बोले तो डॉन लोग का एरिया, दाऊद भाई, हसीना पारकर, अरुण गौली, तो गुंडे लोग का एरिया ना, नजीब भाई, है ना? तो यहाँ पे अगर आप आते हो डोंगरी पे, मोहम्मद अली रोड पे अगर आप आते हो, भिंडी बाजार साइड अगर आप आते हो, साउथ मुंबई की बात कर रहा हूं मैं, मुंबई 40009, तो अगर मुंबई 9 की तरफ अगर आप आते हो डोंगरी में, तो वहां पे आपको चीज देखने को मिलेगा, वहां पे लोग उल्टा काम करते हैं। उल्टा मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? अरे सुनिए ना सर, क्या बोला उल्टा मतलब? क्यों बोला मैं सर? यहाँ पे आपने लिखा y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t माइनस 2, करेक्ट है? अब सुनिए सर, डोंगरी स्टाइल में बात करने वाला हूं मैं। सुनिए क्या बोलता है, ये क्या लिखे ला रहे इधर सर? -2, ये उल्टा रे, उल्टा उल्टा कर, उल्टा कर, उल्टा कर। उल्टा मतलब -2 को क्या बोलने का? -2 क्या बोलोगे उल्टा करेंगे तो? +2। +2 मतलब कैसा? +2 +2 +2, खत्म हो गया। 0 -2 +2 0, 0 +2 2, 4 +2 6, रेडी। कैसा लगा शॉर्टकट? हैव यू अंडरस्टूड द शॉर्टकट सर? यस सर। पहले आपको मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी मेथड दिखाया, जहां पे मैंने एग्जैक्टली करके दिखा आपको y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t माइनस 2, 1 -2, 2 -2, 3 -2, 4 -2, 5 -2, 6 -2, 7 -2, no value. That was मुंबई यूनिवर्सिटी मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या बोलता है? अगर यहाँ पे है माइनस, ए उल्टा ले रहे, +2 कर रहे उधर, -2 +2, 0 +2, 4 +2, आंसर इज रेडी इन फ्रंट ऑफ यू। एंड माइनस होने के कारण इट वेंट टुवर्ड्स राइट एंड यू गेट ए डिले वाला थिंग। अंडरस्टूड सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, समझ गए आपको? नाउ सर स्टार्टिंग पॉइंट -2 चेंज हो गया, ओके। एंडिंग पॉइंट 4 ये भी चेंज हो गया, 6 हो गया। सर विड्थ, हैज विड्थ चेंज्ड? नो सर। ठीक है ना, उसमें क्या हाथ का ऑपरेशन हुआ, उंगली में शायद दर्द नहीं भी होगा, लेकिन हाथ में तो दर्द होगा ना, बिकॉज ऑपरेशन हाथ का हुआ है। सर हाइट, क्या सर पागल की तरह बात करते हो आप? सर हाइट तो चेंज होगा ही नहीं ना सर, पैर का थोड़ी ना ऑपरेशन हुआ है, हाथ का हुआ है सर, हाइट तो सेम ही रहेगा ना। हैव यू अंडरस्टूड सर और नॉट? एनी क्वेश्चन ओवर हियर? अभी देखते कितना समझेला भाई आप लोगों को। t+6 फास्ट शॉर्टकट मेथड, क्विक। 4 to 10 होगा। क्या इशारे रे, कॉम्प्लेन पिया था क्या बचपन में? कहां से इतना दिमाग लाया रे? बता मेरे को सर क्या होगा? ये क्या लिखे ला रे सर? +6, ए उल्टा ले रे, उल्टा ले, उल्टा ले, उल्टा ले, -6 कर रहे इधर, इधर भी -6 कर, इधर भी -6 कर, 2 -2 -6 -8, 0 -6 -6, 4 -6 -2। सर डर लग रहा है, डर लग रहा है। देख विड्थ चेंज नहीं होता है, ये देख कितना विड्थ आएगा सर? -2 -8, 8 -2 6, विड्थ इज सेम, मतलब आपका आंसर बराबर है। देखने का अपने को, चेक करने का भी, चलो सर चेक करते हैं हम लोग, चेक करते हैं हम लोग से सही किया कि गलत किया। -8 -6 -2, क्या बात है यार, सेम टू सेम है। सी विड्थ एंड हाइट इज रिमेनिंग सेम,
समझा आपको सर? सर ये लेवल है समझने का कि विदाउट सॉल्विंग माय स्टूडेंट विल बी एबल टू प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द आंसर henceforth. समझा कि नहीं आपको? एनी क्वेश्चन ओवर हियर? सर और एक एग्जांपल लीजिए ना। ओके, डेफिनेटली लेंगे सर हम लोग। चलो मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं। प्रैक्टिकल एग्जांपल, हाँ देख लेते हैं ना हम लोग सर। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे हम लोग सर, फिर हम लोग कोई और एग्जांपल भी लेंगे जैसा आपने कहा। So just give me a moment, sir. I'll showcase you some very fantastic practical example. चलो भाई इस पे आ जाते हैं। वीडियो ध्यान से देखिए और फिर आप मुझे रेज योर हैंड वेयर द वीडियो एक्चुअली स्टार्ट। ओके, यू हैव टू रेज योर हैंड वेयर द वीडियो विल एक्चुअली स्टार्ट। वीडियो कहां कब स्टार्ट होगा? जब आपको मेरा चेहरा नजर आएगा, ठीक है, वहां पे वीडियो स्टार्ट होने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, कहां वीडियो स्टार्ट हुआ सर? वीडियो कहां स्टार्ट हुआ? एट व्हाट वाज द टाइम? 17 seconds. एग्जैक्टली। अभी जरा इसको आप यहां पे आके बात करिए ना सर, क्या हुआ है सर? यहां पे द वीडियो हैज बीन delayed or advanced. Yes, now you can lower down your hands. वीडियो क्या हुआ यहाँ पे सर? डिले हो गया है। -17. मतलब जो वीडियो 0 से स्टार्ट होना चाहिए था वो अभी 17 से स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि ओरिजिनल वीडियो जब मैंने शूट किया था ना लैब में, तब वो वीडियो था x of t, and now the new video which you're seeing over there, you're observing over there, is nothing but x of t minus 17. Yes or no? यस सर। समझा आपको ये? निखिल ने करेक्टली बोला t minus 17 होगा सर। t minus 17, why? Because now video has been delayed by -17. ओके, तो भाई मुझे उम्मीद है आपको समझ गया होगा कि प्लस और माइनस बीटा क्या होता है। माइनस मतलब डिले, चीजें जो है वो राइट में चली जाएगी, और प्लस अगर है तो क्या होगा सर? एडवांस होगा, और चीजें जो है वो लेफ्ट में जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसीलिए सर आपने लिखा था वहां पे v इज इक्वल टू v0, सॉरी vm साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 90 डिग्री। मतलब इट इज लीडिंग इट बाय 90 डिग्री। दिस इज लाइक लीडिंग, दिस इज लाइक लैगिंग। प्रैक्टिकल एग्जांपल देने का सर, तो समझ में आता है कि क्या क्यों पढ़ रहे हैं। वरना बच्चे क्वेश्चन पूछते मन में क्यों पढ़ा रहे हैं, उगाच कशाला डोक्याला ताप। यू शुड नो वेयर यू आर गोइंग टू यूज इट रियलिस्टिकली। रियल टाइम में कहां यूज करोगे आप? मैंने आपको पहले कहा था कि माय लेक्चर्स यू विल गेट टू नो थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल, रियल टाइम, लॉजिकल, गेट, हर चीज मिलने वाला है आपको। डोंट वरी सर अबाउट इट। ओके, चलो भाई, तो ये समझ गया। लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड सर। एग्जाम्पल्स लेंगे सर हम, डोंट वरी। आपका क्वेश्चन था ना सर एग्जाम्पल लीजिए, और एक डेफिनेटली हम लोग एग्जाम्पल लेंगे सर, डोंट वरी अबाउट इट। और भी एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल्स आने वाले। अभी हम डिस्कस करेंगे टाइम स्केलिंग के ऊपर। मतलब शिफ्टिंग खत्म हो गया सर, अब शुरू होने वाला है स्केलिंग। तो स्केलिंग क्या होता है सर? अल्फा टी होता है। स्केलिंग दिखने में आपको ऐसा दिखेगा, अल्फा टी करके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा टी। और अल्फा जो है ना, ये अलग अलग वैल्यू लेने वाला है। अलग अलग मतलब क्या कहने की कोशिश करो? कहने की मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे आप देखते हो सिंपल भाषा में सर, कि अल्फा जो है वो अलग अलग मतलब कैसा लेगा? अल्फा ग्रेटर देन 1। मतलब अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, इफ आई ड्रॉ नंबर लाइन फॉर यू एंड इफ आई से दिस इज 0, this is 1, and this is 2, and so on, and similarly this is -1 and this is -2, and this will continue. So what is the meaning of alpha more than 1? मतलब 1 से ज्यादा,
तो कैन आई से एट इज 2, कैन आई से दिस एज 2? यस सर, इट इज पॉसिबल बिकॉज दिस सेटिस्फाइज द कंडीशन. 0 अल्फा लेस देन 1, क्या वैल्यू होगा सर? अल्फा इज मोर देन 0 बट लेस देन 1. व्हाट विल बी द वैल्यू सर? 0.5. यस और नो? समझ रहा हूं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर मैं? अल्फा इक्वल टू 1 मतलब, अरे ये हो गया, अल्फा इक्वल टू 1 मतलब 1. अल्फा इक्वल टू -1 मतलब ये वाला, अगर ये 0 है तो ये आपका -1 मतलब ये वाले, इसकी बात चल रही है. ओके, -1 वाला केस. अब यहां पे देखिए सर, ये जरा थोड़ा इंटरेस्टिंग है. अल्फा लेस देन 0 मतलब नेगेटिव पोर्शन, ठीक है, और उसके अंदर अल्फा लेस देन 1 मतलब क्या? मतलब माइनस तो है लेकिन 1 से कम है, मतलब कौन सा वैल्यू सर? -0.5. समझ रहा है सर? अल्फा नेगेटिव तो है, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज यहां पे दे दिया है, बट मोर देन 1 मतलब कौन सा सर? -2. समझा आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? तो यहां पे अगर आप देखते हो, यहां पे आपको मिलेगा 2. यहां पे क्या है सर? ओनली 2. यहां पे ओनली 2. ओके, यहां पे सिर्फ 2 है. यहां पे क्या है? 0.5, 1, -1, -0.5, -2. ओके, तो 2 मतलब मोर देन 1, तो यहां पे कॉम्प्रेशन मिलने वाला है. 0.5 मतलब यहां पे एक्सपांशन मिलेगा, जैसे आपको मैंने वीडियो प्ले करके दिखा. जब मैंने वीडियो को 2x कर दिया तो वीडियो 2 मिनट का वीडियो 1 मिनट में खत्म हो गया, वीडियो कंप्रेस हो गया, टाइम कंप्रेशन. जब मैंने वीडियो को 2 से 2x का जब था वीडियो, उसको जब मैंने नॉर्मल पे लाके फिर 0.5 जब मैंने किया तो वीडियो 2 मिनट का 4 मिनट लगेगा देखने के लिए, आराम से बात करेगा. तो इसको मैं क्या कहूंगा? टाइम एक्सपांशन. अगर मैं नॉर्मल पे रखता हूं प्लेबैक स्पीड तो क्या कहेंगे उसका? हम लोग टाइम बफर. समझ रहे हो सर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? अगर -1 किया तो क्या हो जाएगा? पूरा वीडियो का फ्लिप हो जाएगा. फाइन, मतलब उल्टा होने वाला है पूरा. ठीक है, फाइन. अभी बाद में हम लोग समझेंगे माइनस मतलब रिवर्स तो होगा, लेकिन यहाँ पे एक्सपांशन होगा बिकॉज 0.5 है, और यहाँ पे 2 होने की वजह से कंप्रेशन होगा फॉलोड बाय रिवर्सल्स इन दिस केस. ओके, तो नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ टाइम स्केलिंग, कैसे होने वाला है. इसके लिए भी सर हम लोग जो है वो ऑब्वियसली मुंबई यूनिवर्सिटी मेथड भी फॉलो करेंगे, नंबर 1, और उसके बाद भी शॉर्टकट समझेंगे, शॉर्टकट यूज करके कैसे काम होने वाला है. I hope the things are very much clear to you. Any question, any doubt so far? Any question so far? I have shared with you this PDF with you. You can go through it for your understanding. Fine. Plus, I have also shared this board wala screenshot with you for your fast revision, a last minute revision you can say. This what I have shared with you, right? So ये दो चीज आप देख सकते हो. That's all from my side. We will meet directly on coming Tuesday. Any question, anything you want to ask, sir? Any student is having any question can stay back, others can exit for the further subsequent lecture. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.